Okay, students. So now we are going to start a snap interview of mathematics for our student Yaswant Yadav. Yaswant, first of all, you tell me your BTech branch and from where you have got interview calls. Sir, my name is Jaswant Pratap Singh Yadav and my branch is Agricultural Engineering, and I have get call from IISc Bangalore in Masters of Management and CPDM and Smart Manufacturing. Okay. Okay, Yaswant. So first of all, you tell me what is multiplication rule in probability? Fundamental multiplication rule in probability. Sir, the fundamental multiplication rule says that if there is two matrices, matrix A and matrix B, then they are Probability. the probability. Sir, if there are two events A and B, then the product rule, if they are not exclusive, then their product rule will be probability of A into probability of B when A is happened, or equal to probability of A into probability of B when A happens. If they are mutually exclusive, then it's simply will be probability of A into probability of B. Okay. And what do you mean by mutually exclusive events? Sir, two events can be mutually exclusive if their intersection is zero, or they cannot be happen simultaneously. If A happen, then B cannot happen. Okay. Now you tell me, suppose I throw a dice. Yes, sir. 10 times. Yes, sir. Now what is the probability that at fifth toss, I will get a 5? Sir, dice 5, 1 upon B. We can solve it by binomial expansion. So probability of getting 5. So Px is equal to 5. Probability x is equal to 5 will be 5c10, and 1 upon 6 power 5 into 5 upon 6 power 5. And now we can solve this. Okay. Suppose we have a matrix. Say first row is 3, 1, then second row is 0, -2. 3, 1, 0, -2. Yes, sir. Yeah. Is this singular or non-singular matrix? So it is non-singular matrix as its determinant is not 0. Okay. It is diagonalizable or non-diagonalizable? Yes, sir, it's diagonalizable. Why? Sir, B add in first row, we apply row 1 equal to row 1 plus row 2, then element 1, 2 will be cancelled and only diagonal elements will remain. Okay, fx equal to e to the power mod x. Fx equal to e power mod x. Mod yes. x. Draw the graph. Yes, sir. So this one. E to the power mod x का ग्राफ है ये, e to the power mod x का. Yes, sir. ओके. अच्छा ये बताओ, ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है?
Sir, it's even function. इवन फंक्शन. Yes, sir. तो इवन फंक्शन का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? Y axis के बाद. तो क्या ये सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट? Yes, sir. Function x equal to 0, 0. Yes, sir. Yes, yes. Sorry, sir. Sir, it will be like upward parabola, but its slope will be different, and it will intersect y-axis at 0, 1. Okay. Now suppose we have 3, 3, 5, 3, 4. We have a data set 3, 3, 5, 3, 4. Yes, sir. 3, 3, 5, 3, 4. Yes, sir. Tell me what is the mode of this data set? Sir, its mode will be 3. And median? Median, if we arrange it in increasing order, then 3, 3, 3, 4, and 5. Its median will be 3. Median 3. Yes, sir. And mean? Sir, mean, no. 18 upon 15. 18 upon 15. 18 upon 15. Yes, sir. 18 upon 5, sorry, sir. 18 upon 5. Okay. It will be 3. अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ग्राफ ड्रॉ करो. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा दिखता है ये ड्रॉ करके दिखाओ. Sir, I have taken it's up to mu plus sigma, and it will be like mu plus sigma, 2 sigma, mu plus, and mu minus sigma. तो ये जो इसमें मोड कितने हैं? मोड, हाउ मेनी मोड्स? Sir, nodes. Sir, nodes. Sorry, sir, I don't. Mode. Sorry, sir. Sir, 1. कहाँ पे है वो? सर, जहाँ पे y एक्सिस को कट करता है सर. क्या ये y एक्सिस है जहाँ पे ये बीच में लाइन दिख रही है जो ये y एक्सिस होना जरूरी है क्या? Sir, it's a probability density function actually. अच्छा, ये बताओ. Yes, sir. मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में सुना है आपने? मीन वैल्यू थ्योरम. Yes, sir. बताइए क्या होता है? Sir, if there is a function and it's lie between a and b, then it has slope 0, or its tangent will be parallel to x axis somewhere between a and b, and a and b is inclusive. Yes, closed bracket. ओके. Yes, yes. अच्छा, एक बात बताओ. एक मैट्रिक्स है कोई. Yes, sir. उसकी आइगन वैल्यूज हैं 3, 1, 3. 3, 1, 3. Yes, sir. और 3/3 का साइज है. Yes, sir. 3 cross 3 है. इसकी रैंक पे कमेंट करो. Sir, rank.
क्या होगी इसकी रैंक? हाँ, Sir, its rank will be 3. वाई? Because it's non-singular matrix. It seems non-singular matrix because it has 3 eigenvalues. ओके, अच्छा ये बताओ कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशन सुना है? Yes, sir. Laplace transformation. नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सुना? लाप्लास ट्रांसफॉर्म से अलग। Linear transform. Sorry, sir. अच्छा, e की पावर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ चलो। E power t का 1/s. 1/s? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ओके ओके यशवंत, सो योर इंटरव्यू इज ओवर। Yes, sir. यशवंत, ऐसा लग रहा है कि आपने प्रिपेयर तो किया है कुछ, Yes, sir. बस थोड़ा बीच में कुछ जगह पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी की कमी है। Yes, sir. मतलब उतनी क्लियरिटी के साथ नहीं पढ़ा, मतलब चीजें आपको उनके आसपास घूम रहे हो आप, बट एग्जैक्टली जैसे क्लियर चीजें वो कुछ कम है, कुछ लेकिन अच्छी हैं। कई क्वेश्चन के आंसर आपने अच्छे दिए लेकिन सबके नहीं दिए, ठीक है? Yes, sir. Sir, कौन तो कौन जैसे सी? e की पावर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गलत बताया। e की पावर t का लाप्लास होगा 1/s - 1। e की पावर at का लाप्लास क्या होता है? 1/s - a होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक ही जगह 1 आ गया यहाँ पे। Yes, sir. रिवाइज नहीं किया सर लैप्लास वेट के बाद से। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मैपिंग। Yes, sir. मैपिंग ऑफ वेक्टर ऑफ वन वेक्टर स्पेस इनटू वेक्टर ऑफ अनदर वेक्टर स्पेस। Yes, sir. फंक्शन की तरह काम करता है, जो एक वेक्टर स्पेस के वेक्टर को दूसरे वेक्टर स्पेस के वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है, वो फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है हमारा। सर इसके बारे में सर कहीं पढ़ा नहीं सर आप। सर तो मतलब पढ़ लेना, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देख, थोड़ा सा देख लेना। यस सर। और ये आपका आंसर ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स वाला। मीन वैल्यू थ्योरम और रोज थ्योरम को रिवाइज करो, उसका स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है तुम्हें। यस सर। और सर इंक्लूसिव वगैरह और सब। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ तो बना दिया, लेकिन मोड में कंफ्यूज हुए थे। मोड 1 होता है, जहां पे मैक्सिमम आता है ना, वही मोड होता है वहीं पे। e की पावर मोड x का ग्राफ गलत बनाया था पहले। यस सर। और मल्टीप्लिकेशन रूल भी, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो थोड़ा सा आइडिया है तुम्हें, मतलब, लेकिन कुछ क्लियरिटी की कमी है, उसको प्रॉपर करो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो इस प्रोबेबिलिटी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और थोड़ा ये मैट्रिक्स अलजेब्रा, 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करो। यस सर। सर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह और कैलकुलस भी देखना है क्या सर? हाँ, कैलकुलस के ग्राफ देखो, सारे बेसिक कंसेप्ट्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। हाँ, सारा रेडी करना है। तो जो ग्राफ बनता है सर मीन मीडियन मोड का, उसमें सर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वो कैसे सर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मीन बड़ा है, मीडियन बड़ा है, मोड बना है? वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत होती है क्या? वो सिमेट्रिक होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक ग्राफ और एक और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ होता है सर। वो तो सिमेट्री चेक कर लो ना, स्क्यूनेस चेक कर लो एक बार, स्क्यूनेस के बारे में पढ़ लेना। यस सर, वही थोड़ा सा भी पढ़ रहा था तो वो ग्राफ मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ, तो उसको रेडी करो, स्क्यूनेस को, एक बार आ जाएगा फिर। ठीक है सर, आपके वीडियो पढ़े हैं सर? वीडियो हैं इसके कुछ लेक्चर्स तो जो पैनल पे मिले हुए हैं तुम लोगों को इंटरव्यू के लिए, उनको देखो। यस। ओके, थैंक यू सर।